Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to start our next chapter, which is all about the aggregate demand. It is the chapter number 7 of macroeconomics. Today we'll learn the concepts regarding the aggregate demand, the schedule, about the curve and its component. So let's discuss the concept of aggregate demand. Aggregate demand क्या है? It is nothing but the sum total of the expenditure. भाई वो सारा खर्चा जो लोग प्लान करते हैं टू डू राइट ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाएंगी. और यहाँ जो टाइम पीरियड है इट इज़ द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, एक पूरे साल की हम बात करेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लोग क्या क्या एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं. जब हम उस सारी चीज़ को एडअप कर देंगे दैट विल बी आर एग्रीगेट डिमांड. ओके, therefore aggregate demand is nothing but the sum total of expenditure that the people plan to incur is the key word here on the purchase of goods and services produced in an economy during the period of an accounting year corresponding to the different level of income, right? Here you can see the term here, goods and services. Okay, if you remember from your class 11 we have discussed like there are two types of goods which can be defined as final good or the intermediate goods, right? तो यहाँ जब हम मैक्रो में चीज़ें पढ़ रहे हैं तो now we'll talk about the final goods only, okay, which are ready to consume. तो हम फाइनल गुड्स के बारे में ही बात करेंगे. और यहाँ हम किस चीज़ की बात करेंगे? अनदर कीवर्ड हियर इज इट इज़ द सम टोटल. सम टोटल है हमारी एक्सपेंडिचर का जो भी लोग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे प्लान करते हैं खर्चा करने के लिए, राइट? अब इसके बाद एक और बात है यहाँ, एग्रीगेट डिमांड को आई कैन से इट एज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ओके, सो इट विल बी ऑल द वे सेम. Here are few of the key points that you need to keep in your mind, that aggregate demand does not refer to a particular good or a service demand in the market. किसी एक particular good के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं? We are talking about the demand of all the goods and services. We are taking the sum total, right? Second here is because we are talking about the period of an accounting year, therefore it is a flow concept. राइट ये भी हमने क्लास 11th में समझा था, डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द फ्लो कॉन्सेप्ट. आई होप यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. देन थर्डली when we talk about the aggregate demand, right, so it can be measured in two parts. Number one, in reference to the journal price level, जिसके साथ जब प्राइस लेवल जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है किसी चीज़ का तो उसकी जो है डिमांड गिरती जाती है. देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशनशिप है विद दैट ऑफ द जर्नल प्राइस लेवल इट इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज बोथ ऑफ देम वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. Second here how we can measure the aggregate demand is in relation to the level of income of the people. अभी जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वहाँ क्या बोला था? करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट? तो यहाँ क्लास 12th में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल के करस्पॉन्डेंस में इस चीज़ को पढ़ेंगे, right? And then we have that aggregate demand is always measured in terms of total expenditure that one is planning to incur on different goods and services, right? यही तो हमारी definition मैंने आपको बताया था. And this is how we can also call aggregate demand as aggregate expenditure. Coming to the aggregate demand schedule, right? Whenever you will see this word schedule, it means we are going to represent it in the tabular form. Okay, table की form में will represent the aggregate demand or the planned expenditure or the aggregate expenditure with reference to the different level of the income, right? Here one point you need to note down here is that however there is always some minimum level of aggregate demand. मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हमेशा इकोनॉमी में रहेगी ही रहेगी, नो मैटर इवन इफ योर इनकम इज ज़ीरो. I hope this is clear. This could be your probable one marker MCQ true or false statement. This could be asked in any form, right? Also you need to remember that as the level of income will increase at a higher level of income, there will be a point where the aggregate demand will lag behind the income.
थोड़ी सी एग्रीगेट डिमांड इनकम से पीछे रह जाएगी. वाई? बिकॉज पीपल विल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम नाउ. Okay, now then we have the aggregate demand curve. As I've told you earlier also, curve means diagrammatic representation of that particular schedule, right? So here, while doing the key points in the previous slide, I have told you that at your class 12th level, we'll be studying aggregate demand in relation to income. And we know that aggregate demand is positively related to income, right? जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाएगी, राइट? तो पॉजिटिव रिलेशन है, इट मीन्स बोथ वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, राइट? नाउ लुकिंग एट दिस डायग्राम वी हैव दिस y रिप्रेजेंट द इनकम कर्व, राइट? सो ब्लू लाइन में जो ये कर्व है y का, वो इनकम का कर्व है. इट शोज कि इवन क्योंकि वो नीचे से शुरू हो रहा है तो इवन एट इनकम जीरो लेवल पे भी देयर इज सम लेवल ऑफ व्हाट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. एंड क्योंकि मेरा पॉजिटिव रिलेशन है एग्रीगेट डिमांड का इनकम से, सो इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, राइट? देन आई हैव another point here is when aggregate demand is equal to income, which is my point E point पे अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. यहाँ इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है. ओके, यहाँ इक्वल हो गया है. प्रायर टू इट ई पॉइंट से अगर पहले की बात करें तो वहाँ क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम. इनकम कम है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, राइट? लेकिन अब क्या होगा, यहाँ इस केस में दे विल बी मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, राइट? फिर अगर हम बियॉन्ड ई की बात करें, बियॉन्ड ई की अगर मैं बात करूँ, ई के बाद की बात करूँ मैं, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ जैसे जैसे इनकम मेरी बढ़ रही है, पीपल आर डिमांडिंग एट दिस पॉइंट ऑल्सो, लेकिन दे विल स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ द इनकम. ओके, सो आप देख पा रहे हो कि मिनिमम लेवल ऑफ इनकम पे भी मेरी कुछ एग्रीगेट डिमांड रहती है इकोनॉमी में. ओके, और एज पर दिस थिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे यहाँ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है, 30. अगर इनकम 0 है तब भी मेरी प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है, 30 है. देयरफॉर जो मेरा एक C+I वाला या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाला जो कर्व है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लैक लाइन हियर, वो 30 से स्टार्ट हो रहा है. वाई? यही तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में दे विल बी सम मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड नो मैटर your income is there or not. Even if your income is 0, there will be some minimum level of aggregate demand in the economy. So this was all about the curve. Then we have the components of aggregate demand. While doing the components, we'll divide it into two parts. One is the closed economy और दूसरा रहेगा open economy, right? Closed economy में there will be 2 sector closed economy model and there will be 3 sector closed economy model. ओके, 2 सेक्टर का मतलब है यहाँ सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे, राइट? 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, दे विल बी नो गवर्नमेंट सेक्टर. ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट आर इकोनॉमी ओनली. बंद है, सिर्फ हमारी इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हैं. 2 सेक्टर मतलब यहाँ सिर्फ हम हाउस होल्ड कंजम्पशन लेंगे और I will represent here the producer investment expenditure. Okay, C is representing the household and I is representing the firms here. Okay, the 2 sector closed economy में the formula of aggregate demand will be AD is equals to C plus I. C is the household consumption, I is the producer investment expenditure. Whereas when we will talk about 3 sector के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा. ओके, लेकिन रिमेंबर दैट इट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी. अभी भी इकोनॉमी बंद है, हम बाहर वाली दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो इन 3 सेक्टर मॉडल इट विल बी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C+I+G. यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इक्वेशन. एग्रीगेट डिमांड की 2 सेक्टर में क्या है, 3 सेक्टर के अंदर क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट? एंड हियर G रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. देन वी हैव द ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी मतलब अब इकोनॉमी खुल गई है. सो यहाँ हमारे कंपोनेंट्स 4 कंपोनेंट हो जाएंगे, 3 तो सेम ही रहेंगे, C+I+G, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, राइट? अब क्या चीज़, क्योंकि इकोनॉमी अब खुल गई है, सो विल बी कंसिडरिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. ठीक है, कि वर्ल्ड के साथ क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है. फॉर दैट पर्पज वी आर टेकिंग हियर X minus M. X here represents the export, M here represents the imports. So X minus M will give us the net export
भाई कितना एक्सपोर्ट किया, उसमें से कितना हमने इंपोर्ट कर लिया, उसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द नेट एक्सपोर्ट्स, राइट. सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर मॉडल में है. एंड देन वी हैव द ओपन इकोनॉमी मॉडल विच हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड also, and we have in total 4 components, right? You need to memorize all of these components very, very nicely, because this could be asked in 1 marker, 2 marker, 3 marker, even in the long questions, right? That was it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to like, share and subscribe to my channel and help us grow. Also, guys, share this video as much as you can. Thank you.